پاکستان ہماری منزل ہے، پاکستان ہمارا خواب ہے۔ اسٹارٹ ہوا وہ پرابلم راولاکوٹ کے مقام سے اسٹارٹ ہوا کہ وہاں پہ چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے انتشار پیدا کیا۔ یہ جو تحریک چلی ہے یہ کوئی پاکستان مخالف نہیں تھی، چونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ کیونکہ یہ تحریک راولاکوٹ سے شروع ہوئی اور اہلیان پونچھ، اہلیان راولاکوٹ اس تحریک کے بانی بھی تھے، وارث بھی تھے اور آخری دم تک وہ اس تحریک کے ساتھ جڑے رہے۔ خاص کر کے میں ان تحریک کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لوگ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تحریک میں کامیابی پہ تمام لوگوں کو مبارکباد۔ ایک عام آدمی کی تحریک تھی، اس میں جتنے بھی لوگ شامل تھے یہ عام آدمی کی حیثیت سے اس تحریک میں شامل ہوئے اور اپنے مطالبات۔ یہ تحریک نہ کسی افواج کے خلاف ہے، نہ کسی ملک کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طویل اور سیاسی اور نظریاتی وابستگیوں سے بالا تر جد و جہد کے نتیجے میں وفاقی حکومت اور صدر پاکستان نے بھی فوری نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف آزاد کشمیر حکومت کو عوامی مطالبات کو تسلیم کرنے کا کہا، بلکہ آٹے کی سبسڈی اور بجلی کی پیداواری لاگت پر فراہمی کے لیے 23 ارب روپے کی گرانٹ بھی مہیا کی، جس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران اور عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ہم وفاقی حکومت کے بھی ممنون ہیں کہ وفاقی حکومت نے خطی رقم فراہم کر کے ہمارے مطالبات کو پذیرائی بخشی۔ یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ تحریک تھی، اس میں جو قافلے جو چلے، جو ڈڈیال سے روانہ ہوئے اور مظفر آباد تک پہنچے، انہوں نے وہ پونچھ میں آئے، تو اس دورانیے میں بعض غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے باعث 4 انسانی جانیں بھی گئیں اور قومی املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ حالانکہ آزاد کشمیر کے شہری اور پاکستانی عوام یکجان اور دو قلب ہیں، جن کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی سازش بھی کارفرما تھی، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ یہاں آج عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے اس تحریک کی کامیابی کے بعد کیا پیغامات دیے اور سیاسی سماجی شخصیات کے کیا تاثرات ہیں اور شہریوں کے کیا تاثرات ہیں، وہ انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک، جس کو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا اور جس میں آزاد کشمیر بھر کی عوام نے بغیر کسی تفریق کے، کسی تعصب کے، کسی سیاسی نظریے کے، صرف اور صرف ایک غریب کے نظریے کو لے کے چلی آگے، سستا آٹا سستی بجلی۔ اور الحمدللہ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ عوام کی یہ محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی، اور آج ہم ایک بڑے اچھے پیکیج سے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ وہ پیکیج اسٹارٹ ہوا وہ پرابلم راولاکوٹ کے مقام سے اسٹارٹ ہوا کہ وہاں پہ چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے انتشار پیدا کیا۔ وہ راولاکوٹ سے جب انتشار چلا، انہوں نے ہمیں ہمارا جو SOP تھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، اس کو بلڈوز کیا اور انہوں نے کسی بات نہیں مانی۔ پریکٹیکلی میرے گواہ موجود ہیں مجتبیٰ بانڈے اور جو ہمارے ساتھی تھے، پریکٹیکلی ہم سڑک پہ بیٹھے کو حالا ان کی چھوٹیاں پکڑی، منتیں کی کہ بھئی آپ اس طرح آگے نہیں جائیں، ہمارا طے ہوا ہوا ہے، آرڈر جاری ہو رہے ہیں، 2 آرڈر آگے ہمارے پاس، ایکشن کمیٹی کو آنے دیں، ہم اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد ہم یہاں سے آگے چلیں گے۔ اور آگے ہمارا طے ہوا ہمیں مل جاتے ہیں تینوں نوٹیفیکیشن، ہم نے ٹکراؤ نہیں کرنا، ہم راڑا کے مقام پہ رکیں گے، ہم حکومت کے پاس جائیں گے، وہاں سے چند بندے ان سے SOP طے کریں گے کہ اس کراؤڈ کو ہم نے کہاں لے جا کے ڈسپرس کرنا ہے، وہاں پہ تقریب کرنی تھی ہم نے، اور وہاں پہ ہمارا چارٹر ڈیمانڈ تھا یہ ہماری پوری ہو، یہی بات بنتی تھی نا، یا اس کے علاوہ بھی بات ہے، سیکھ ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ اس بات کو نہ مانے تو اس کا مطلب ہے نا وہ لوگ جنہوں نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی اور وہ ہمیں پاس کر کے 300-400 لوگوں کو لے کے اسمبلی کے آگے بیٹھ گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ جب ایک SOP طے ہوئی ہے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اور یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ یہ 3 بات جب آپ لیں گے تو ہم سے سوال تو جب کیا ہو گیا کہ وہاں رک کے ہم نے وہ 3 مطالبات پڑھنے ہیں، ان کو اپنے وکلا جو ہمارے راجہ محمد علی خان صاحب، محمود بیگ صاحب، ہارون مغل صاحب، احمد صاحب، کہ ان کو بتا کے ان سے مشورہ لیں گے، اگر ان کا جی اوکے تو ہم اناؤنس کر دیں گے جناب ہمیں مطالبات منظور ہو گئے۔
प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पे इंतजार करेंगे और वहीं से दोबारा हम असेंबली की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये मानता है खिलाफ प्रोग्राम था, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की तो वहाँ पे आके बैठ गए। उसी दौरान फिर ये रेंजर्स वाला जो सारा मामला हुआ, लेकिन ये कि हमें वहाँ से रारा से फैसल जाना पड़ा और जो रंजन जुमान साहब को हमने क्राउड को वहाँ से निकाला, क्योंकि हमारा तय हुआ था कि हमने हाइड्रो टेक्निकल के पास आना है, क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा था कि वो किसी भी जगह पे पूरा नहीं हो सकता। उस क्राउड को लेके हम अल्लाह का शुक्र है कि अगर हमारा क्राउड वहीं पे रहता तो इस मुजफ्फराबाद के अंदर उसे बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये हमारी किस्मत ठीक थी, हमारी नीयत ठीक थी, और वो लोग जिनके इरादे गलत थे, वो इस मुजफ्फराबाद के अंदर तबाही करना चाहते थे, तो चाहे किसी भी शक्ल में हो, उनके वो इरादे जो वो अल्लाह ने जो वो पूरे नहीं होने दिए। हमारी नीयत ठीक थी, अपने लोगों को बचाया, अपने बच्चों को बचाया, हमारे 3 बच्चे जो है वो जान की बात आ गए। अगर ये उसके बावजूद हुआ, अगर आप सोचें कि एक तो आप तमाम अहबाब का हरियाणा पौनियोला का हरियाणा पुलिस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस तहरीक के अंदर, क्योंकि ये तहरीक रावलाकोट से शुरू हुई और हरियाणा पुंछ हरियाणा रावलाकोट इस तहरीक के बानी भी थे, वारिस भी थे और आखिरी दम तक वो इस तहरीक के साथ जुड़े रहे। बाद में ये तहरीक पूरी रियासत की तहरीक बनी। तो इस सारे अरसे के दौरान एक बड़ा सब्र आजमा और तवील अरसा था कि जो 9 मई को रावलाकोट से शुरू हुआ और 14 मई को जाके वो सारा कंप्लीट हुआ। 1 साल के बाद 1 साल की बड़ी तवील जदोजहद है और इस जदोजहद के अंदर मैं समझता हूँ कि रियासत भर के हमारे हर डिवीजन से तल्लुक़ रखने वाले बिलखुसूस पुंछ डिवीजन, मुजफ्फराबाद डिवीजन, मीरपुर डिवीजन और हरियाणा पुंछ की तरफ से इस तहरीक के साथ जिस जुर्रत के साथ, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ और बड़े इखलास के साथ लोगों ने तावन किया, हर सतह पे लोगों ने तावन किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ एक अवामी तहरीक थी और सही मानों में ये अवामी तहरीक साबित हुई। अवाम ने इसके साथ जब जुड़े, पूरी क़ुव्वत के साथ जुड़े, हर मकबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाला फ़र्द इस तहरीक में जब शामिल हुआ तो ये तहरीक कामयाबी से हमकिनार हुई। हमारा एक तारीख साज लॉन्ग मार्च हुआ जिसके नतीजे में हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़े, जिसमें हम तमाम अहले कश्मीर को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम ये समझते हैं इसका क्रेडिट किसी फर्द वाहिद को नहीं जाता, बल्कि इसका क्रेडिट जो है, जो चीज़ें हासिल हुई हैं, जो हमारी हुक्मरान तबकात हैं, पिछले 56 सालों से, क्योंकि 56 साल पहले मंगला डैम बना था और उसके जो बिजली के हवाले से वो चीज़ें कुछ हासिल करने में नाकाम रहे। उनकी अपनी जो उनकी नेग्लिजेंसी या उनकी नाअहली थी कि उन्होंने जो है पिछले 56 सालों से आवाम के साथ खिलवाड़ करते रहे, अपने हकूक़ के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात नहीं की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम ने, वयूर आवाम ने अपने हकूक़ के लिए, बिजली, आटे के लिए एक तारीख साथ एक रकम की, इस उन हकूक़ का हमने पहरा भी देना है। अभी जो है बहुत सारी चीज़ें कुछ होनी बाकी हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुए, क्योंकि उस पर अमल दरामद करवाने पे भी हम सारों ने मिलकर पहरा देना है। सबसे पहले तमाम अवाम को जिन्होंने अवामी हकूक़ की तहरीक में हिस्सा लिया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अवामी हकूक़ की तहरीक थी, ये किसी मुल्क, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं थी। मैं अवाम को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने हकूक़ के लिए मुत्तहद हुए और निकले सड़कों पे। जहाँ तक इस अभी सोशल मीडिया पे या आगे पीछे वो किया जा रहा है, पाकिस्तान हमारी मंजिल है, पाकिस्तान हमारा ख्वाब है। हमारे आबो अजदाद ने पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की इलाक़ी की करारदाद मंजूर की थी। आज भी हम उसी के साथ खड़े हैं। मेरे वालिद साहब मरहूम सरदार साहब खालिद ने अक्सर ये बात कहा करते थे कि मक्का और मदीना के बाद मेरे लिए कोई सरजमीन पाक है तो वो पाकिस्तान है। मेरा भी उसूल पाकिस्तान के लिए है। मैं अपने वालिद के उन्हीं अफकार, उन्हीं फ़िक्रों के साथ सियासत में आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी सियासत पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए हमेशा जारी रखूँगा। ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक आम आदमी की तहरीक थी। इसमें जितने भी लोग शामिल थे, ये आम आदमी की हैसियत से इस तहरीक में शामिल हुए और अपने मुतालबात के लिए हुए। इनका ना किसी सियासी पार्टी से कोई मकसद था, ना किसी सियासी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी इनके साथ। ये इंडिविजुअल, ये लोग अपने अपने घरों से निकले और अपने हुकूक की खातर इन्होंने इस मार्च में शिरकत की। जहाँ तक इस चीज़ का तल्लक है कि इतने बड़े एक क्राउड के अंदर चंद शर्पसंद अनासर ला मला कहीं भी इस तरह की तहरीकें होती है तो कुछ लोग नेगेटिव रोल प्ले करते हैं।
तो इसी तरह इसमें भी हुआ। इससे बड़े प्रोग्राम, इस तरह बड़े क्राउड जब होते हैं तो इस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसहैप होते हैं, जो कि शर्पसंद अनासर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि ये कोई अक्सियती बुनियाद पे हैं या हम पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग कोई तहरीक चला सकते हैं इन फ्यूचर, ऐसा कतई नामुमकिन है। अब बेसिकली देखना है कि ये चीज क्यों क्रिएट हुई। तो इसका अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में मैं जो मेरा अपना एक अंदाजा है, मेरी अपनी असेसमेंट है, तो ये हमारे जितने भी इसके जिम्मेदारान हैं वो हमारे MLA वजीर साहिबान जो हर 5 साल बाद 3 साल बाद आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं और वो अवाम को भूल जाते हैं। तो ये बेसिकली उनकी क्रिएट की हुई चीजें हैं जिस पे आज वो सारे मुख्तलिफ अंदाज में तनकीद कर रहे हैं कि इसमें ये जमात शामिल हो गई, जो टेररिस्ट आ गए, फलां आ गए, हिंदुस्तान के आर्मी आ गए। ऐसी कोई चीज नहीं है। एक्चुअल इसकी जो बेसिक जो मकासद थे लोगों ने पूरे किए। हम लोग ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हम वही लोग हैं, आइंदा भी लगाते रहेंगे। लेकिन इस तरह की तहरीक और ये चीज जो क्रिएट होती है ये हुक्मरानों की नाअहली की वजह से होती है। तहरीक में कामयाबी पे तमाम लोगों को मुबारकबाद। ये तहरीक जो चली पिछले 1 साल 5 दिन से, इसमें हमारा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इदारों फौज के साथ किसी किस्म का कोई मामलात नहीं थे। ना हमने उनके खिलाफ कोई बात की, ना हम उनके एंटी हैं, ना हम उनके एंटी कोई हमने बात की। हमारा जो मौक़िफ़ था अपनी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से, सस्ती बिजली, सस्ता आटा, उनकी मुराद का खात्मा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत इस टाइम कामयाब हो चुकी है। सस्ती बिजली उनको मिल रही है, सस्ता आटा उन तक पहुंच रहा है। तो हमारा इस पे पक्का मौक़िफ़ है कि हम अपने अवाम के लिए जो बाहर निकले थे उसमें कामयाब हो चुके हैं। हमारा स्टेट के खिलाफ, किसी रियासत के इदारों के खिलाफ, किसी सिस्टम का हमारा कोई तहरीक ऐसी नहीं थी कि जो हमारी इस काज को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी बातें की गई। लेकिन हमारी जो खालिस्तन तहरीक थी वो खालिस्तन अपनी बिजली, सस्ता आटा और मुराद का खात्मा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रियासत कामयाब हो चुकी है। इसमें सारी रियासत को मुबारकबाद देता हूँ। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी खतीर रकम दी। हमारे 3 बुनियादी हमारी इस तहरीक के मुतालबात हैं। हमारे इस लॉन्ग मार्च के आटे पे सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान के तर्ज पे, बिजली अपनी पैदावारी लागत पे जो हमें मंगला से हासिल हो रही है, और अशरफिया की मराद। हमारी ये तहरीक ना किसी अफवाज के खिलाफ है, ना किसी मुल्क के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक की खातिर है। पाकिस्तान हमारी जानों के साथ है। हम हमेशा से पाकिस्तान के भाइयों का हमेशा हम शुक्रगुजार रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान हो या कोई भी जो है इदारा है, वो हम सब का इदारा है। ये जो तहरीक चली है ये कोई पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थी, चूंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी जान है, हम पाकिस्तानी हैं और आइंदा भी पाकिस्तान है। चूंकि हमारी जायदादें हैं, हमारा खून एक है। जो जलजले में पाकिस्तानी ने हमारी की है, हम जिंदगी सारी पाकिस्तान के एक अवाम को भूल ही नहीं सकते हैं। बाकी जो तहरीक चली है ये किसी एक जमात की नहीं, किसी एक फर्द की नहीं, कुछ चंद अनासर थे। जहाँ मजमा होता है वो हर किस्म के लोग हैं जिन्होंने कोई शरारत वगैरह की है, कोई झंडा वगैरह होता है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और आइंदा भी मजम्मत करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी की फौजी की हैसियत से यहाँ खड़े हैं कश्मीरी, और इंशाअल्लाह कोई किसी मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक नहीं थी। ये हमारा हक बनता है क्योंकि हमने अपने हक के लिए ये सारा तहरीक चलाई है। और मैं जिन लोगों को, जो जमातें भी इस तहरीक में आई है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। कोई किसी एक आदमी की तहरीक नहीं थी, कोई किसी एक जमात की तहरीक नहीं थी। ये सारे पिंबर से लेके नीलांबर से लेके अपना मुजफ्फराबाद तक ये सब लोगों की तहरीक थी। पाकिस्तानियों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और सदर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ जिनने इस तहरीक को बड़े खूबसूरत अंदाज में खत्म किया है। और मैं फौज को भी सलाम पेश करता हूँ। आप देखें कि पुंछ के लिए लोग कह रहे थे कि यहाँ खून खराबा होगा, एक फूल तक नहीं टूटा है। मैं कमिश्नर पुंछ, DC पुंछ, SP पुंछ और DIG पुंछ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े खुशी इसलबी से इस मसले को पुंछ से गुजारा है। और हमने पौनियोला में भी उन लोगों को बड़े खुश इसलबी से अलविदा किया है।
یہ لوگوں کا حق ہے, اپنا حق مانگتے تھے. اس میں کوئی ہم پاکستان, ہم انڈیا کے, ہم تو پاکستانی فوجی ہیں, وہاں فوج کی حیثیت سے ہم پاکستان کے لیے آگے ایک بارڈر پہ کھڑے ہیں. جیسے ہماری فوج کھڑی ہے اسی طرح ہم فوج کی پاکستان کے لیے جگہ ایک جان دینے کے لیے تیار ہے. جو ابھی تو تحریک چلی ہے, جو آٹا اور بجلی کے سلسلے میں جو بہت بڑی تحریک چلی آزاد کشمیر میں, خاص کر کے میں ان تحریک کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا, لیکن اس میں بہت سی تنظیمیں بیچ میں ایسے بھی شامل ہو گئے تھے جو پاکستان مخالف تحریک تھی, اور انہوں نے آگے جا کے مظفرآباد میں جا کے جو ہے نا پاکستان کے خلاف تقریریں شروع کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف تقریریں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جو ان کا ایشو تھا, مین ایشو آٹا, بجلی اور جو ان کا مسئلے تھے, ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. تو پاکستان ہے تو کشمیر ہے, کشمیر ہے تو پاکستان ہے. کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گئے, تو پاکستان کے بغیر ہم کشمیری بھی جو ہے نا ایسے اکیلے ہی ہیں. پاکستان ہمارا دیش ہے, پاکستان چلے گا تو ہم کشمیری پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.